السلام علیکم جماعت چہارم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم کریں گے اردو کا کام، اور اردو کے کام میں آج ہم کیا کریں گے؟ درخواست۔ جی ہاں، آج ہم کریں گے درخواست۔ تو تمام اچھے بچے اپنی اپنی نوٹ بکس کو نکال لیں، اس کے اوپر لکھیں تاریخ اور دن۔ اپنے دائیں جانب آپ لکھیں گے 23 دسمبر 23 دسمبر 2022۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعے کیا کام کیا تھا، ہم نے لفظی اور ہندسی گنتی کی تھی، اور لفظی اور ہندسی گنتی میں ہم نے 23 بھی لکھنا سیکھا تھا اور 22 بھی لکھنا سیکھا تھا۔ سب بچوں کو یاد ہے؟ شاباش، سب بچوں کو یاد ہے، اور سب بچوں نے بہت اچھے طریقے سے کام بھی کیا تھا۔ شاباش۔ اچھا جی، آپ نے اپنے کاپی کے صفحے کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ جو پہلی والی جو سطر ہے آپ نے اس کے اوپر جماعت چہارم نہیں لکھنا، آپ نے پہلی سطر پہ جیسے ہم اپنی کلاس میں کام کرتے ہیں ویسے ہی کام کرنا ہے۔ آپ نے پہلی سطر پر کیا لکھنا ہے؟ جی فاطمہ آپ بتائیں۔ جماعت کا کام، شاباش۔ دوسری سطر پہ ہم کیا لکھیں گے؟ حارث آپ بتائیں۔ عنوان، درخواست۔ پہلی سطر پر کیا ہوگا؟ جماعت کا کام، جماعت کا کام۔ دوسری سطر پہ ہم جائیں گے، وہاں ہم لکھیں گے عنوان، درخواست، عنوان، درخواست۔ اور اس کے بعد ہم کسی سطر پہ آئیں گے تو ہم نیول کیا لکھیں گے؟ شاباش آپ بتائیں۔ جی سب بچوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے درخواست برائے بیماری رخصت۔ جی نیمل شاباش، اچھا پڑھا آپ نے۔ درخواست برائے بیماری رخصت۔ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آج کل سردی کا موسم ہے اور سردیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسموک پہلے بہت زیادہ تھی، اسموک بھی ابھی بھی ہے، اور فوگ نے بھی اپنی شدت پکڑ لی ہے، یعنی کہ دھند اور اسموک کی لپیٹ میں ہیں ہم آج کل۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو کور نہیں کریں گے، ٹوپی نہیں پہنیں گے، گرم کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہمیں سردی بھی لگ سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو کیا ہمیں ایسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں ٹوپی نہیں پہننی چاہیے؟ کیا ہمیں جرابیں نہیں پہننی چاہیے؟ جی پہننی چاہیے۔ اس طریقے سے ہم اس تمام موسم کو بڑے اچھے طریقے سے ہرا سکتے ہیں۔ اور ہم کیسے ہرا سکتے ہیں؟ کہ ہم بیمار نہ ہوں، ہمیں دوائیاں کڑوی بالکل بھی نہ کھانی پڑے، ہمیں ڈاکٹر سے انجیکشن بھی نہ لگوانا پڑے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یاب رکھیں۔ تو ہمیں اپنی حفاظت بھی کر کے رکھنی ہے۔ جی شاباش۔ تو آج ہم لکھیں گے درخواست برائے بیماری رخصت، کہ ہمیں اللہ نہ کرے کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو چھٹیاں چاہیے۔ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے، کبھی نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ میں شدید درد ہو جاتا ہے، کبھی سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، کبھی اللہ نہ کرے بخار ہو جاتا ہے۔ بخار جب اپنی شدت پکڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کروائیں۔ آج کل جیسے ڈینگی کا آج کل بہت عام ہوا ہوا ہے، مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تخلیقی لکھائی کی تھی نا، ڈینگی اور اس سے بچاؤ کی تدابیر، اور تمام بچے اس موضوع سے، اس عنوان سے بہت لطف اندوز بھی ہوئے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، سب بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا نا اس کو۔ جی تو کیا ہوا تھا کہ جب ہم نے ڈینگی کو ہم نے پڑھا، ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ ڈینگی ایک خطرناک قسم کا جو مچھر ہے، خوفناک قسم کا، لمبی لمبی ٹانگوں والا، کالی اور سفید ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی، سب چیزیں ہم نے پڑھی تھی، اسے کاٹنے سے ہو گیا۔ تو جب ہم نے وہ ڈینگی کا تخلیقی لکھائی کی تب پتہ چلا کافی بچوں کو ڈینگی بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر ڈینگی کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو کبھی پیٹ درد ہوئی ہو اور آپ نے چھٹی کر لی تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، کبھی آپ کو شدید سر میں درد ہو، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں، آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کلاس میں جب ہم نے درخواست کی تھی تو سب بچوں نے اپنے اپنے جو تھے وہ نظریات بتائے تھے کہ ہمیں ایسا ہو گیا تھا، ہمیں ایسا ہوا تھا، ہمیں اس بیماری کی وجہ سے میں نے چھٹی کی تھی، میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا، میں اس وجہ سے نہیں آئی تھی۔ تو آپ اپنی اپنی درخواست بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہم جو میجر میں کریں گے وہ بیماری کی درخواست تو ہے، تو ہم نے اس میں کیا لکھنا ہے، کیا ہم نے کہنا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ہمیں کیا ہوا جو ہم نے چھٹی کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اب لکھنا ہے جو ہماری درخواست کا بالکل شروع کا حصہ ہے، جس میں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے مخاطب ہوتے ہیں، جس میں ہم ان سے بہت عاجزانہ طریقے سے اور بہت ادب سے بات
शाबाश। पहली सतर पे आप 4 लफ्ज यही वाले लिखेंगे, बखिदमत जनाब डायरेक्टर साहिबा, बखिदमत जनाब डायरेक्टर साहिबा। इसके आगे आपने उल्टा कॉमा डालना है और सफाई से अच्छा काम करना है। आपने इन 3 सतर पे कोई लाइन नहीं छोड़नी, आपने इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है आपने इसी तरीके से इसको लिखना है, आपने इसमें सतर नहीं छोड़नी। जब हम जनाबे आलिया के नीचे वाले हिस्से पे जाएंगे वहां पर आप सतर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग बड़ी होती है तो उनका सफाई से काम तभी लगता है जब वो सतर को छोड़ते हैं। यहाँ पे सतर नहीं छोड़नी जी। बेखेदार वाफिद जी, अयान हाज हारिस, ऊंची आवाज से आपने मेरे साथ पढ़ना है और बाकी सब बच्चों ने भी। बेखेदार वाफिद मीम मत वाफिद मत, जीम नून लिखना जनाब बे जनाब डायरेक्टर साहिबा, दाल अलिफ हमजा रे अर दायर ये काफ टेरेटा डायरेक्टर साहिबा, स्वाद अलिफ साहिबे साहिबा, बाखिदमत जनाब डायरेक्टर साहिबा। जी तमाम बच्चों ने पहले सतर लिख ली है जी, शाबाश। अपनी कॉपी ऊपर करके दिखाएं कि तारीख दिन और आपने हाशिए लगा लिए उस पर, और आपने जमात का काम उन्वान भी लिख लिया और दरख्वास्त का जो आपका उन्वान है आज का आपने वो भी लिख लिया है। शाबाश, अच्छे बच्चे, सब बच्चों ने लिख लिया है। तो हमारा सफ़ा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। सफ़ा तैयार है सबका? शाबाश। तो यहाँ पर जो है हमारी एक आधी हाशिए की लाइन जो कि लकीर खींचना बहुत ज़रूरी है, कि कुछ बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ किसी नहीं लिखना। सफाई से काम तभी होता है जब आपको एक दिए गए सफ़े के ऊपर आपने उस काम को मुकम्मल करना हो। अगर आप उस लाइन से उधर या इधर निकले वो काम अच्छा लगता है किसी को? नहीं, वो काम खूबसूरत नहीं लगता, उस काम में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कोई दिलकशी नहीं होती, वो खूबसूरत भी नहीं लगता, वो प्यारा भी नहीं लगता, और फिर बच्चों को स्टार भी नहीं मिलता, नहीं मिलता जी। तो आपने सबने प्यारा प्यारा अच्छी तरह अपने जैसा प्यारा प्यारा काम करना है। दूसरी सतर पे हमने क्या लिखना है? ऐनान खड़े होकर बताएं। शाबाश जी, शाबाश। लाहौर मकतब, हमारे स्कूल का नाम, हमारे प्यारे स्कूल का क्या नाम है? लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज लाहौर। लेकिन हमने पूरा नाम एक सतर पर नहीं लिख देना, हमने इसके हिस्से कर लेने हैं। कितने हिस्से होंगे? 2। शाबाश। 4 अल्फाज हम इस पहली सतर पे लिखेंगे, यानी कि स्कूल के नाम की पहली सतर। वैसे हम अल्फाज की दूसरी सतर पे लिखेंगे। लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल, लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल, लाम अलिफ ला हे वा हो रे लाहौर मीम काफ मक्ते बेतब मकतब इस्लामिक, अलिफ ज़ेर सीन इस्लाम अलिफ ला इस्ला, मीम काफ मक इस्लामिक। मीम के नीचे भी ज़ेर ही आप समझें, क्योंकि इंग्लिश में जो हम लिखते हैं तो इस्लामिक MIC, इस्लामिक ISLAMIC इस्लामिक लफ्ज़ बनता है, इसलिए जो स्पेलिंग है, इसलिए उसकी स्पेलिंग को ज़हन में रखते हुए हमने इसको जब उर्दू में लिखना है तो इसको इस्लामिक नहीं बोलना, हम इसको इस्लामिक बोलना है। तो समझे, मीम के नीचे भी ज़ेर है, ठीक है? ऐसे पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल, लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल। 4 लफ्ज़ सब बच्चों ने लिख लिए सफाई से? सब बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं। शाबाश शाबाश। अब हमने तीसरी सतर लिखनी है, उसमें क्या लिखना है? ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज कॉमा लाहौर, और यहाँ पर हमारे स्कूल का नाम खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे शरारत करते हैं आर्ट्स के साथ। जी हाँ, तो वो शरारत क्या होती है जी, कौन बताएगा? आप लिखते हैं जी आर्ट, ये गलती कर देते हैं और फिर उसकी वजह से आपको इस्लाह लिखनी पड़ती है। तो इस्लाह को लिखने से हमने बचना है ना, हम पहले ही अपना अच्छा प्यारा काम ना करें, करेंगे ना सब बच्चे? शाबाश। तो आपने अड़े के ऊपर कोई नहीं लगानी, नो नो नो, ये अड़े नहीं है, ये रे है। अलिफ मद्दा आर, अलिफ मद्दा रे आर ए सीन आर्ट्स, आर्ट। सब बच्चे पढ़े इसे?
निकालेंगे तो रे की आवाज आती है ना, सब बच्चे निकाले अपने मुंह से रे रे रे, रेलगाड़ी छक 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 छक, ठीक है। आर्ट्स, ये रे की आवाज है तो यहाँ पे रे ही रहेगा, यहाँ पर आपने अड़े नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा, रे बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, ठीक है। ये काफी बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आपने कॉपी पे इसका कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये सब वैसे लिखना है ताकि आपको एक अच्छा सा बड़ा सा स्टार मिले, आपको शाबाश मिले, आपको अच्छे से कमेंट्स मिले। Of arts and alif ye noon dal and sciences, sin alif sa hamza noon sin ze sciences, comma Lahore, comma Lahore, और इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है जनाबे आलिया, जनाबे आलिया। यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया है और सब बच्चों को समझ भी आ गई है, शाबाश। इसके बाद हम लिखेंगे, आपने दरख्वास्त लिखनी है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि दरख्वास्त में अगले सत्र पे हम क्या लिखेंगे? शाबाश, हाथ खड़े करें जी, शाबाश। अब हमने जनाबे आलिया के बाद लिखना है, कौन बच्चा बताएगा? जी आंसर बताएं जी। हम लिखेंगे मुअद्दबाना गुजारिश है, मुअद्दबाना, मीम और वाव के दरमियान हम लगाएंगे हमजा, मुअद्दबाना, इसके आगे आएगा दाल बेलिफ बा नून है ना, मुअद्दबाना गुजारिश है कि, हाँ जी, आप अपने अपने रीजन लिख सकते हैं, अपने अपनी वजूहात लिख सकते हैं छुट्टी की, जिसको जो भी मसला था, बुखार था, नज़ला ज़ुकाम था, जो भी लिख सकते हैं जी। तो आजकल चूंकि सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो हम नज़ला ज़ुकाम की शिकायत भी लिख सकते हैं, हम बुखार के साथ नज़ला ज़ुकाम भी लिख सकते हैं जी। तो अंत में बताया, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे कल रात से शदीद सर में दर्द है, दर्द है और दर्द के साथ क्या है जी, नज़ला ज़ुकाम भी ले सकते हैं, मुझे नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत भी है जी। तो हमने क्या लिखा? मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे कल रात से शदीद सर में दर्द है, या सर में तकलीफ है, सर में तकलीफ है, मुझे नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत भी है, शाबाश। यहाँ तक सतह सबने लिख ली है, शाबाश। और क्या लिख सकते हैं, कौन बच्चा बताएगा जी? जी अली शबीर आप बताएं जी, शाबाश। मेरे जिस्म में शदीद, या आप क्या लिख सकते हैं, हमने ज़ख़ीरा अल्फाज में सीखा, खास अल्फाज में शदीद की जगह हम और क्या लफ्ज़ लिख सकते हैं, इंतहाई, यानी कि बहुत ज़्यादा। शदीद आपने एक ये लफ्ज़ लिखना है, ये वाला लफ्ज़ लिखना है, इंतहाई। जिस्म में क्या है, मेरे जिस्म में शदीद तकलीफ, तकलीफ है जी, शाबाश जी। खान साहब बताइए इस अगला जुमला जी, शाबाश। जिस की वजह
शदमद की कोई गलती तो नहीं की है आपने, बिल्कुल भी वहाँ पर कोई गलती नहीं, आपने अपनी गलती को चेक कर लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। जी एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। मुद्दबाना गुजारिश है कि मुझे कल रात से शदीद सर में दर्द है, मुझे नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत भी है, मेरे जिस्म में शदीद या इंतहाई, कोई एक लफ्ज़ आप लिख दें। बेहतर यही है कि आप इंतहाई वाला लफ्ज़ लिखें, शदीद को आप छोड़ दें, क्योंकि हमने दरख्वास्त में शदीद का लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। लड़के लिखेंगे हो सकता, लड़कियां लिखेंगी हो सकती। मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाएं। इसके बाद हमने अपनी दरख्वास्त का आखिर वाला हिस्सा लिखना है। तो और आखिर वाले हिस्से में क्या आएगा जी, कौन बच्चा बताएगा? जी हाथ खड़े करें, शाबाश। जी आखिर वाले हिस्से में आएगा सबसे पहले, हाँ जी आप खड़ा करके बताएं हाथ, मीरा आप बताएं, शाबाश जी, मीरा बिन इमरान जी। तो आपने अपनी बाएं जानिब पे ही सबसे आखिर वाले हिस्से में लिखना है सबसे पहले। जी मीरा बिल्कुल ठीक बताया, अल आरिज। जी रमीशा आप बताएं, शाबाश। आगे आएगा दूसरी लाइन पे, दूसरी सदर जो इसकी होगी, आप का ताबे फरमान शागिर्द। और लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी ताबे फरमान शागिर्दा। काफ अलिफ काफ को हमने की में चेंज करना है, ठीक है। सब तब्दील करेंगे, इसके बाद आप सब अपना अपना नाम लिखेंगे, लड़के अपना अपना नाम लिखेंगे, लड़कियां अपना अपना नाम लिखेंगी। और सबको पता होना चाहिए कि उनका अपना अपना नाम बिल्कुल दुरुस्त पूरा नाम लिखना है। खंसा जाहिदा, खंसा जाहिद पूरा नाम लिखिए, हारिस का नाम पूरा हारिस अली नाम आएगा। इसके बाद हमारी आएगी जमात। किस जमात में हैं हम? जी जमात चहारम। चहारम की आगे जो लड़के हैं वो लिखेंगे नीला, और लड़की क्या लिखेंगी? सब्ज। इसके बाद आखिर वाला जुमला क्या आता है? मोरखा। मोरखा क्या होता है? तारीख। आज क्या तारीख है? 23 दिसंबर 2022। और यहाँ पर हमारी दरखास्त मुकम्मल। अब तमाम बच्चे अपनी उर्दू की डायरी को नोट कर लें। उर्दू की डायरी है, खुशखबरी का जुमला है, मेहनत कामयाबी की जमानत है। जमानत का क्या मतलब है? किसी चीज की गारंटी कि आप जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देंगे। अल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको उसका फल ना मिले। तो फल किस शक्ल में मिलता है? कामयाबी की शक्ल में, शोहरत की शक्ल में। अल्लाह ताला को जरूर कामयाबी अता फरमाएंगे, आमीन। इसके बाद आपकी डायरी का जो दूसरा हिस्सा है वो है दरखास्त बराए बीमारी दोहराएं। तमाम बच्चों ने अपनी डायरी मुकम्मल कर ली है। मेहनत कामयाबी की जमानत है, दरखास्त बराए बीमारी दोहराएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और तमाम बच्चों ने अपना कॉपी का सफ़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा और सब बच्चे इसको अच्छे तरीके से याद करके आएंगे। कल तक के लिए सब बच्चों के लिए अल्लाह हाफिज़।